گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. میرے عزیزو آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بائبل مقدس کا ایک ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے, یاد کی جاتی ہے, اور بہت سے لوگ اس کتاب کی کافی چیزوں کو زبانی یاد رکھتے ہیں. اور اس کتاب کو لکھنے والا کوئی ایک انسان نہیں ہے, وہ 6 لوگ ہیں. تو یقیناً بچے جان گے وہ کون سی کتاب ہے. او پریز دی لارڈ, ہاللیلویا, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بالکل میرے عزیزو وہ زبور کی کتاب ہے, اور میں آج اس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ مل کے ہم سیکھیں گے. زبور 52 ہے اور جس کو لکھنے والا داؤد ہے. داؤد نے آدھے سے زیادہ زبور لکھے ہیں. اس کے بیٹے نے صرف 2 زبور لکھے ہیں. موسیٰ نے بھی زبور لکھے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ اگر آتا ہے تو وہ آصف آتا ہے جس نے کافی زیادہ زبور لکھے ہیں. جب یہ زبور لکھے جاتے ہیں تو ان سب کو مقرر کرنے والا بھی داؤد ہی تھا, کیونکہ داؤد یہودا کے گھرانے سے تھے اور باقی لوگ جو تھے وہ لاوی کے گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے. میرے عزیزو جب ہم زبور 52 اور اس کی 8 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے, لیکن میں تو خدا کے گھر میں یتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں. میرا توکل ابد آباد خدا کی شفقت پر ہے. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو, آمین. میرے عزیزو جب میں اس پودے کے اوپر غور کروں یا اس کی کوالٹی آپ کو بتاؤں تو سن کے آپ حیران ہوں گے. بائبل مقدس میں بار بار اس ہرے درخت کا, یتون کے درخت کا ذکر ملتا ہے. جب مجھے ہم اس کے اوپر سیکھ رہے تھے, کلاس لے رہے تھے, تو میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ اتنا زیادہ درخت آخر فیمس کیوں ہے, اس کے اندر آخر اتنی کوالٹی کیا پائی جاتی ہے. بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے 25 کتابیں اس کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں ملتی ہیں. میرے عزیزو جب بائبل مقدس کے آغاز پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر ہے زیتون کا, اور بائبل مقدس کی لاسٹ والی بک میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. بائبل مقدس کے فرسٹ پہ جو پہلی بک ہے اس میں ذکر کیسے ملتا ہے, نوح نے ایک پرندے کو جب ہوا میں اڑایا تو وہ ایک پتی لے کے آیا تھا. وہ پتی یتون کی پتی لے کے آیا تھا. اور جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہم اینڈ والی بک کو دیکھتے ہیں مکاشفہ میں, تو وہاں پہ 2 یتونوں کا ذکر ملتا ہے ہمیں, اور وہ موسیٰ کو اور ایلیا کو شو کرتا ہے. میرے عزیزو جب ہم یہ زبور داؤد نے لکھا ہے تو داؤد نے اس وقت لکھا ہے جب یہ ساؤل سے بھاگ رہا تھا, بیابانوں میں, جنگلوں میں, مشکلوں میں تھا, پریشانیوں میں تھا, دشمن کا سے سامنا تھا. آج میں اور آپ بھی اتنی آسان زندگی نہیں بسر کر رہے. آج میں اور آپ بھی اسی طرح مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کسی کو بے روزگاری کا, کسی کو بیماری کا, کسی کو مالی حالاتوں کا, اور کسی کو اور طرح کا, کسی کو اولاد نہ ہونے کا, اور کسی کو اولاد ہو جانے کا, اور اس اولاد کا وفادار نہ ہونا. یہ بھی ہمیں ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نوجوان بچوں میں دیکھا جائے تو انہیں اپنی اسٹڈی کا, اپنے فیوچر کا بڑا فکر مند ہے. داؤد یہ جب زبور لکھ رہا ہے کہ یہ ساؤل سے بھاگ رہا ہے, اپنے دشمنوں سے پناہ لے رہا ہے. میرے عزیزو اگر اس یتون کے نشان کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو یہ ایمانداری کا نشان شو کرتا ہے, وفاداری کا نشان شو کرتا ہے. یہ صلح کا, امن کا, اور خدا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا, خدا کی حضوری کو لے کے آنے کا بھی ایک نشان ہمیں نظر آتا ہے. یہ فتح مندی کا نشان نظر آتا ہے, یہ محبت کا نشان نظر آتا ہے, یہ راست بازی کا نشان ہمیں نظر آتا ہے, اور یہ دوستی کا, صلح کا بھی نشان ہمیں نظر آتا ہے. اٹلی میں اسے قومی نشان کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک جانور ہے اس کو ہم شو کرتے ہیں, یہ ہمارا قومی جانور ہے, اس طرح اٹلی کے لوگ یتون کے درختوں کو
अपना कौमी निशान मानते हैं। बहुत से वेलफेयर या बहुत से चर्चिस में या बहुत सी जगहों पे जैतून का इस्तेमाल दरख्त के तौर पे, स्लीप की लकड़ी में, बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। मेरे अजीजों, अगर इसकी बाइबल मुकद्दस में हम अहमियत की तरफ जाते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में इसका बहुत ही अहमियत का ये हामिल रहा है अपने वक्त में। मेरे अजीजों, ये क्या किन चीज़ों में यूज़ होता था? जो 7 चिराग दान थे उनके अंदर जो ऑयल डाला जाता था वो भी जैतून का ऑयल था, और बादशाह और काहिनों को जब मसा किया जाता था वो भी जैतून के ऑयल से किया जाता था। जैतून के ऑयल से हैकल की चीज़ों की बाजुकात सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये पाक मकाम की 2 करूबियत थी और दाएं और बाएं बड़ी होती थी, उनके अंदर भी ये इस्तेमाल होता था। और सबसे बड़ी बात बताइए, पाक मकाम का जो डोर था जहाँ से सरदार कायन साल में एक दफा दाखिल होता था, ये दरवाजा भी इसी का बना हुआ था। ये बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होने के साथ साथ मेरे अजीजों, पाक कलाम में, ओल्ड टेस्टामेंट में ये कुर्बानी के साथ लाने का भी एक ऑर्डर था कि ये जिस इंसान ने कुर्बानी चढ़ानी है उसके लिए ये लेके आया जाए। मेरे अजीजों, जब हम इसके जैतून के दरख्त की अब हमने क्वालिटी देख ली, इस्तेमाल देख लिया, अब इसकी मजबूती देखते हैं। ये मजबूत बहुत ज़्यादा है। ये 20 फीट से ज़्यादा ज़मीन के अंदर अपनी जड़ को फैलाता है और ये कहीं ना कहीं से पानी हासिल कर लेता है। जो पानी चाहे जितना भी दूर हो, इसकी जड़ों के अंदर इतनी पावर और ताकत होती है कि वो पानी को अपने लिए जमा कर लेता है, हासिल कर लेता है। इसीलिए तो शायद दाऊद कहता है कि मैं खुदा के घर में हरे जैतून के दरख्त की मानद हूँ। अगर वो दरख्त जो है वो पानी जमीन से लेता है, और हम ईमानदारों को पानी कहाँ से मिलता है? हमें खुदा के पाक कलाम से मिलता है। हमें हिजकिय्याह की किताब बयान करती है कि ये नदी नालों के करीब जो दरख्त लगाए गए हैं उन्हें बाइबल मुकद्दस की तरफ से पानी मिलता है। हमें मुकद्दस बाइबल मुकद्दस की तरफ से पानी मिलता है। जो इसके पानी को लेते हैं उस पानी से वो हरे और भरे रहते हैं। साइंस बयान करती है, नबातात बयान करता है कि ये जैतून का दरख्त अगर आग में डाला भी जाए तो ये जल के इसे वापस वैसा माहौल दिया जाए तो ये फिर से अपने अंदर लाइफ को कायम कर लेता है। इसी तरह हम ईमानदार जल भी जाते हैं तो मेरे अजीजों हम फिर से खड़े हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 हरे जैतून के दरख्त बड़े ही फेमस है, सॉरी 3, जो आग में डाले जाते हैं और आग के अंदर जाके भी वो जल के बाहर नहीं आते। कोई उन 3 जैतूनों का नाम बताएगा? जी, ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदा के बंदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो सदर मिस्र अब्दी नजूजा, तीनों लोगों को आग में डाला गया लेकिन वो जले नहीं। जब वो बाहर आए तो मेरे अजीजों, उनके अंदर से जलने की बू भी नहीं थी। जैसे ये दरख्त अगर आग में डाला जाता है, ये जल जाता है, इसे जब बाहर निकाला जाए, इसको पानी दिया जाए, वैसा माहौल प्रोवाइड किया जाए तो ये लाइफ अपने अंदर पकड़ लेता है। इसी तरह हम ईमानदार भी अगर बहुत सी मुश्किलों में गिर भी जाते हैं, परेशानियों में गिर जाते हैं, मुश्किलों में गिर जाते हैं, बीमारियों में, हालातों के मारे हो जाते हैं, लेकिन हम कभी भी जलते नहीं, हम फिर से हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि हमें पानी खुदा के कलाम से मिल रहा है। हमारी खुराक खुदा के कलाम से हमें मिल रही है। मेरे अजीजों, यीशु को जब आजमाया गया तो उसे इब्लीस कहता है कि तुझे अगर भूख लगी है तो तू इन पत्थरों को कहे कि रोटी बन जाए। तो खुदा ने कहा कि इंसान न सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से हम हमेशा जिंदा रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ईमान की मजबूती को हम पकड़े रखते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम इसी तरह मेरे जीजो, जब हम यतून के दरख्त की तबाही की तरफ गौर करते हैं, देखते हैं कि ये तबाह नहीं होता। इसी तरह ईमानदार भी कभी भी हालातों की वजह से तबाह नहीं होते, चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अपने लोगों को उठा लेता है। खुदा के कलाम में लिखा है, सादत गिरता तो जरूर है लेकिन वो गिरा नहीं रहता, वो उठा खड़ा किया जाता है। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि मैं खुदा के घर में हरे जैतून के दरख्त की
मानित होगा। वो कहता मेरा ईमान और तवक्कुल और भरोसा यहोवा पाक खुदा पे है। हम खुदावन की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जब न्यू टेस्टामेंट की तरफ आते हैं तो वहाँ पे 4 हमें जैतून के दरख्त नजर आते हैं। एक जगह पे हमें पलूस और सिलास नजर आता है, वो खुदावन की इबादत करने के लिए हैकल की ओर जा रहे थे और मेरे अजीजों उन्हें रोम की फौज ने क्या किया, जेल खाने में डाल दिया, उन्हें मारा गया। लेकिन वो हरे जैतून के दरख्त की मानत थे, वो हम तो सुना कर रहे थे और उनको जो खाना मिल रहा था, जो उनको पानी मिल रहा था, वो खुदा के कलाम की तरफ से मिल रहा था। हर जैतून की मैंने जैसे से बताया कि वो शिफा देता है, वो बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल में रखता है, आपके खून के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको महफूज रखता है, बहुत सी बीमारियों से आपको ये प्रोटेक्शन करता है। ये वेट कम भी करता है, बालों की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। ये 2 पलूस सलास जो हरे जैतून के दरख्त हैं, ये जब जेल खाने के अंदर जाते हैं तो वर्शिप करते हैं, तो ये अपने अंदर से एक चीज को निकाल रहे होते हैं और उस चीज को रिसीव कौन कर रहा होता है, दरोगा। मेरे अजीजों, ये उनके लिए खुशी और शादमानी और निजात का बायस भी बन जाते हैं। जब हम एक और न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं पतरस को, यूहन्ना को, वो हैकल की ओर जा रहे थे, वो भी इबादत के लिए। जब वो हैकल के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो जो खूबसूरत हैकल का गेट था, मेरे अजीजों, वहां पे एक जन्म का लंगड़ा बैठा होता था। उस लंगड़े को वहां पे बिठाया जाता था ताकि हैसियत जितनी भी किसी की होती थी उसकी हेल्प की जाती थी। पतरस जब वहां पे रुकता है तो कहता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है। वो हरा जैतून का दरख्त था, वो कहता है कि मैं यीशु के नाम से तुझे शिफा देता हूँ, उठ और खड़ा हो जा। जो जन्म का लंगड़ा था वो खड़ा हो जाता है। जैतून के जो दरख्त होते हैं मेरे अजीजों, जैतून के दरख्त जो होते हैं वो अपने अंदर से ऐसी चीजों को निकालते हैं जो दूसरों के लिए बायस बरकत का सबब बनती है। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, एक हमें और खूबसूरत बाइबल मुकद्दस में से 128 ज़बूर है और उसकी 5 आयत मेरे साथ निकाल लीजिएगा। ये आयत हम पढ़ेंगे और आखिरी बात करते हुए कलाम को वाइंड अप करेंगे। ये लिखा है 128 ज़बूर है और उसकी 3 आयत है। लिखा तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवा जात तात की मानत होगी, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ओ यस हालेलुया। अगर आप हरे जैतून के दरख्त हैं तो फिर मेरी और आपकी औलाद क्या होगी, ओ यस, पौधे भी फिर वही काम करेंगे जो दरख्त करते रहे हैं। पौधे भी वर्शिप करेंगे, पौधे भी फिर खुदावन की हमदो सना करेंगे, पौधे भी फिर दूसरों के रखड़ों में खड़े होकर दुआ करेंगे। मेरे जिसो जब ये दाऊद ज़बूर लिख रहा है, उसकी एज पता कितनी है, 17 से 19 साल के अंदर। यहाँ पे 17 से 19 साल के अंदर कितने नौजवान बेटे और बेटियां बैठी हुई है, अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। 17 से 19 साल की उम्र से, प्रेज द लॉर्ड, हमारे दरमियान में एक बड़ा खूबसूरत पौधा मौजूद है। वो एज में शायद ज्यादा हो गया होगा लेकिन वो है बड़ा खूबसूरत। नौजवानी के याम में वो खुदा के साथ चल रहा है। वो अपने माँ बाप के लिए दस्तरखान पर जैतून के पौधे की मानद है। हम उस पौधे के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। नेका नूर है वो पौधा, हालेलुया। क्योंकि इसका बाप और इसकी माँ खुदा के घर के लिए हरे जैतून के दरख्त की मानद है और वो बच्चा पौधे की मानद है। मेरे चीजों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बच्चों को जब हम खुदा की लाइन की तरफ लेके आना चाहते हैं, उनके अपने कुछ एम्स, अपने कुछ गोल सेट किए होते हैं उन्होंने, लेकिन खुदा से अलग होके दुनिया के साथ आप अलग हो जाएंगे तो फिर तरक्की सरफराजी आपकी कभी भी नहीं हो सकती। सुलेमान के पास हद से ज्यादा सोना था। उसके जमाना में चांदी को मिट्टी की तरह समझा जाता था। उसका तख्त जो था हाथी के दांतों का था। उसकी साइडों पे 2 शेर खड़े हुए होते थे और उसके साल में उसे 166 कतार सोना बरामद होता था।
डिफरेंट तरह के मुल्क उसे वो सोना देते थे। अगर उसकी आज के हिसाब लगाया जाए तो वो 50 किलो से ज्यादा सोना बनता था। उसे ये सारी चीजें कैसे मिली? क्या उसने बड़ी मेहनत की, बड़ा बिजनेस किया? कैसे फिर ये सारी चीजें उसे मिली? मेरे अजीजों, उसने हिकमत को अपना लिया था। इमसाल की किताब कहती है, हिकमत पुकारती आओ और मुझे ले लो। और वो हिकमत कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उसने यीशु को अपना लिया था। उसे फिर ना किसी फ्यूचर की टेंशन रही, ना किसी माजी की टेंशन रही। वो चलता रहा और वो अमीर होता रहा। 40 साल उसकी हुकूमत के दौरान ना को काल आई और ना कोई जंग हुई। उसके बाप ने 66 जंगे जीती, लेकिन उसके जमाना में मेरे अजीजों एक भी जंग नहीं हुई। उसके जमाना में ना काल पड़ी। उसके बाप के जमाना में काल भी थी, लेकिन उसने हिकमत को अपना लिया हुआ था, हिकमत को उसने थाम लिया हुआ था, जिसकी वजह से वो तरक्की सरफराजी से मिली। अगर आज आप कहते हैं कि हम पढ़ाई की तरफ गोल अपना जहन सेट कर लें, खुदावन की खिदमत को छोड़ दें, तो मेरे अजीजों आपको तरक्की सरफराजी खुदा दे। मेरे ये दुआ है, जितने यहाँ पे नन्ही जाने बैठी हैं, आने वाले दिनों में बड़े बड़े ऑफिसर बने। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा से अलग हो के यीशु को तरक करके आप ये तरक्की सरफराजी नहीं पा सकते। दुनिया में रहते हुए यीशु के साथ चलना है। यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो दाऊद कह देता है 52 चैप्टर ज़बूर में, मैं तो खुदा के घर में हरे जैतून के दरख्त की मानद हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। चाहे साउल जितनी मर्जी फौजें मेरे पीछे लेके आ जाए, चाहे वो कुछ भी कर ले, मैं हरा का हरा ही रहूंगा। और वो वैसे का वैसा ही रहता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर 2026 के अंदर आप बच्चों ने या बड़ों ने ये गोल सेट नहीं किया, जहाँ पे जितने बच्चे बड़े बैठे हैं वो खुदावन से कहें कि खुदावन मैं तेरे घर में हरे जैतून के दरख्त की मानद रहना चाहता हूँ, वो आपको ऐसा माहौल प्रोवाइड करेगा, आपको वो ऐसी चीजों के साथ मिला देगा, जोड़ देगा कि आप हमेशा सरसब्ज रहेंगे और आपके बच्चे आपके दस्तरखान पे जैतून के पौधे की मानद होंगे। खुदावन की खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की